Hello, students. We have already studied this chapter, I Am Born, by Charles Dickens. Today we will discuss the exercises of this chapter. Understanding the text, answer these questions. Where did Miss Betsy Trotwood live? Mrs. Betsy Trotwood कहाँ रहती थी? Here is the answer. She lived alone in a cottage in a small village on the sea coast. She lived alone in a cottage in a small village on the sea coast. Okay. Let's move to next question. Next question is, how did David's mother know that stranger walking up the garden was Miss Betsy Trotwood? डेविड की माँ को कैसे पता था कि जो गार्डन में चलकर आ रही है औरत वो मिसेस बेट्सी ट्रॉटवुड है? She once knew that it was Miss Betsy Trotwood as she had heard about her from my father. So what will you write the answer? Her husband had already told her about Miss Betsy and she recognized her from that description. Next question is, how do you know that David's mother was a shy and timid person? तुम्हें कैसे पता कि डेविड की माँ एक शाई, शर्मीली और टिमिड पर्सन थी? Mrs. Betsy commanding ways made David's mother nervous, and she immediately obeyed her. She also began to cry when Miss Betsy spoke to her. Next question. Although Miss Betsy Trotwood was stiff and stern, she was also kind. Do you agree or disagree with this statement? Write a reason for your answer. Mrs. Betsy Trotwood बहुत ही कड़ी औरत थी मगर फिर भी वो दयालु थी. तुम इस बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? तुम इस बात से सहमत हो या असहमत हो इस स्टेटमेंट से? अपना रीजन लिखो, अपना कारण लिखो. Miss Betsy was also kind. She addressed David's mother kindly and politely and was ready to bring up her unborn child. कैसे पता चलता है कि वो काइंड है? क्योंकि वो उसके जन्मे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार थी. ओके. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड पेगोटी सेंड फॉर अ डॉक्टर? पेगोटी क्यों डॉक्टर को बुलाने गई? सी Peggotty came with the tea. She saw how ill Miss David was, looked and sent for the doctor at once. Mrs. Copperfield looked very ill and she was expecting a baby, so Peggotty called for the doctor. What was Miss Betsy doing when the doctor came downstairs? Miss Betsy क्या कर रही थी जब डॉक्टर नीचे आया? When Mr. Chip, the doctor, and Peggotty took upstairs, Miss Betsy sat in the living room. When Mr. Chip came downstairs, he saw Miss Betsy walking up and down the room. This is the answer. She was walking up and down the room. Next question, seventh is, and she, how is she? Who does Miss Betsy mean by she? Why did Mr. Chillip is not understanding her? Miss Betsy meant the baby.
Miss Betsy was referring to the newborn baby as she. Mr. Chillip did not understand her because he thought she knew that the baby was boy. I'll repeat the answer. Mrs. Betsy was referring to the newborn baby as she. Mr. Chillip did not understand her because he thought she knew that the baby was a boy. Question number 8. What did Miss Betsy do when the baby boy was born? What do you think she did? Why do you think she did that? She put on her bonnet and walked straight out of the house because she was disappointed, because she wanted a girl child. She put on her bonnet and walked straight out of the house and she never came back again. She was disappointed that the baby was not a girl. क्योंकि वो disappointed थी कि baby लड़की नहीं. Okay? Next is choose the correct answer to complete these sentences. Copy the sentences in your notebook. Miss Betsy Trotwood was angry with David Copperfield's father because he had married a very young woman. He had never visited Mr. Betsy after he got married. He was once her favorite nephew and he had quarreled with him. The right answer is option A. He had married a very young woman. Mrs. Betsy गुस्सा थी डेविड कॉपरफील्ड के फादर से क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम उम्र की औरत से शादी की थी. We know that David Copperfield's mother was young because she obeyed Mrs. Betsy. Miss Betsy said she was just a baby. She began to cry. Because Miss Betsy said that she was just a baby. Mrs. Betsy ने कहा कि वो एक बच्ची ही है. Miss Betsy told David Copperfield's mother that she wanted to be the baby's godmother. वो बच्चे की क्या बनना चाहती थी? गॉड. मिसेस बेट्सी ने डेविड कॉपरफील्ड की माँ से कहा कि वो बच्चे की क्या बनना चाहती हैं? गॉड मदर बनना चाहती हैं. डेविड कॉपरफील्ड्स मदर लुक्ड इल बिकॉज डेविड कॉपरफील्ड की माँ बीमार दिख रही थी क्योंकि शी फेल्ट कोल्ड. शी डिड नॉट लाइक मिस बेट्सी. शी वॉज अबाउट टू गिव बर्थ टू अ बेबी. क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने वाली थी. ओके, सी ऑप्शन. Now structures. Read these sentences. Auxiliary verb, be, do, have. Okay. Read these sentences. One evening before I was born, my mother was sitting by fireside. I have given Hema the books. I don't want an umbrella. We have learned how the forms of verb be, am, is, are, was, were are used as helping verb और auxiliary verb. हम जानते हैं कि verb के be का अलग अलग फॉर्म यूज किया जाता है. be का अलग अलग फॉर्म क्या है verb का? am, is, are, was, were. हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. द अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हैव के डिफरेंट फॉर्म्स, हैव, हैज, हैड, एंड डू के डिफरेंट फॉर्म, डू, डज, डिड. वी एड हेल्पिंग वर्ब टू मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? मेन वर्ब के साथ लिखा जाता है टू शो टाइम और फॉर्म ऑफ टेंस. टाइम या फॉर्म ऑफ टेंस दिखाने के लिए, एंड टू एड मोर मीनिंग और मोर मीनिंग ऐड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वॉज का इज एम आर का यूज होता है. क्यों? प्रेजेंट टेंस के लिए वॉज वर्ड का यूज होता है फॉर पास्ट टेंस. सेम वे हैव, हैज फॉर प्रेजेंट टेंस, हैड इज फॉर पास्ट टेंस. ओके, सो टाइम दिखाने के लिए टाइम का पता चलता है आपको मेन वर्ब के साथ. जब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स लगे होते हैं तो उससे आपको टाइम का पता चलता है फ्रॉम द टेंस. और ये जो टाइम का पता चलता है वो वर्ड, वो सेंटेंस में और मीनिंग देता है. जैसे वन इवनिंग बिफोर आई वॉज बॉर्न माई मदर वॉज सिटिंग. मेरे जन्म के पहले, एक इवनिंग की बात है. कब? जन्म के पहले. ये वर्ड से पता चल रहा है क्या कि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस हुआ है. कि यहां भी वॉज है, आई वॉज बॉर्न. वर्ड से क्या पता चलता है कि पास्ट टेंस में सेंटेंस हुआ है, ये काम हुआ है. ओके, आई हैव गिवन हीना द बुक.
मैंने हीना को अपनी किताब दी। तो हैव से पता चलता है क्या कि अभी अभी दी है, इट्स इन प्रेजेंट टेंस। In the example of previous page, the helping verb gives us more information about the main verb. Helping verb main verb के बारे में और information देता है. For example, in first sentence, was tell us that something happened one evening some time ago. First sentence में जैसा कि मैंने आपको बताया कि was क्या बता रहा था, was बता रहा था कि जो काम हुआ है वो कुछ समय पहले हुआ है. This was is telling कि कुछ समय पहले काम हुआ है. Okay? In the second sentence, have helps us understand that someone gave Hina the book. Have बताता है कि किसी ने हीना को बुक दिया and they are now with her. और वो लोग अभी उसके साथ हैं, मतलब वो बुक अभी एक्सचेंज हुआ, present. The word don't in the third sentence tell us that the person does not really want the umbrella. डोंट क्या बताता है कि उस आदमी को अम्ब्रेला नहीं चाहिए. थर्ड सेंटेंस में डोंट बताता है कि उस आदमी को अम्ब्रेला नहीं चाहिए. ओके तो वॉन्ट में यहां पे सारे मेन वर्ब्स कौन कौन से, सिटिंग, गिवन, वॉन्ट, ये सारे मेन वर्ब्स हैं और इनके साथ जो ये सारे वॉज, हैव, डोंट हैं क्या ऑक्सिलरी वर्ब है और उस सेंटेंस का मीनिंग और इंप्रूव कर रहे हैं. ओके विद द ऑक्सिलरी वर्ब इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट places in these sentences, copy the complete sentence in your notebook. आपको अपनी नोटबुक में पूरा सेंटेंस करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लिखना है. I am sure first sentence is already completed for you. I need some help with my project. I do need some help with my project. I'm sure I met him somewhere before. What will be the right sentence for this? I'm sure I have met him somewhere before. You will add have after I have. I'm sure I have met him somewhere before. In third sentence, he learned the poem by heart. He has learned the poem by heart. After he, you will add has. He has learned the poem by heart. They want to go to the film. They don't want to go to the film. They don't. After they, you will write don't. They don't want to go to the film. I riding my bicycle quite fast when a dog suddenly ran across the street. I was riding. मैं अपनी साइकिल चला रहा था जब अचानक से कुत्ता सड़क के बीच में आ गया. We working on this project together. We are working. We are working on this project together. Write the correct form of the verbs in the bracket and complete these sentences. C does not want to go to Christmas shopping this weekend. Grandfather dash at the moment. You can meet him in the evening. Grandfather is resting. Grandfather अभी आराम कर रहे हैं, तुम उनसे बाद में मिल सकते हो. शाम में मिल सकते हो. Grandfather is resting. What will you write? Is resting. Okay. Next sentence. We dash the principal for permission to go home. We have asked. We have asked the principal for permission. Okay. I dash at the kites in the sky when it began to drizzle. I was looking. B का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? I was looking. मैं काइट्स की तरफ देख रहा था, मैं पतंग की तरफ देख रहा था आसमान में जब बारिश होने लगी. He dash a passport to travel to Nepal. He does require. What will you write? Does require. DOES. Does. REQUIRE. He does require a passport to travel to Nepal. Word and use, phrasal verbs. We
often use phrases like the ones in these sentences. हम लोग अक्सर phrases use करते हैं जिस तरह के phrases इस sentence में है. Miss Betsy said, take off your cap. Mrs. Betsy कहती हैं, take off your cap. मतलब अपना कैप हटाओ. टेक ऑफ का क्या मतलब है? रिमूव करना. टेक ऑफ जो फ्रेज है उसका मतलब होता है रिमूव. किस चीज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, कहने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? टेक ऑफ फ्रेज यूज करते हैं. ओके. मिस बेट्सी पुट ऑन हर बोनेट एंड वॉक्ड स्ट्रेट आउट ऑफ द हाउस. पुट ऑन मतलब पहनना, वोर. पुट ऑन का मतलब क्या होता है? वोर, किसी चीज को पहनना. मिसेस बेट्सी ने अपना बोनट पहना और घर से बाहर चली गई. Next is the meaning of take off and put on is clear from the sentence of the previous page. In the sentence below, however, the highlighted words have a special meaning. Yes, I can. Not much. But Mr. Copper was teaching me and my mother broke down. Broke down मतलब रोने लगना. रोना शुरू करने को broke down कहते हैं. Okay? Suddenly started to cry a lot. Broke down. I have decided to take up painting in holidays. मैंने painting की क्लासेस लेनी शुरू करने के बारे में सोचा है. किसी चीज के को स्टार्ट करने के बारे में, किसी चीज को, नई चीज के में इंटरेस्ट लेने के बारे में जब आप बात करते हो तो व्हाट फ्रेज यू यूज? टेक अप. टू डू समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग. कोई नई चीज शुरू करना है, कोई नई चीज में इंटरेस्ट लेने को टेक अप कहते हैं. ओके. फ्रेज यूज करते हैं हम लोग. यूज द फ्रेजेस एंड द हिंट्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस. कुछ फ्रेजेस आपको दिए हैं नीचे. आपको इन सारे फ्रेजेस को यूज करके सेंटेंस नीचे फिल करना है. फर्स्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज फ्रेजेस. टेक ऑफ. टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना. यू कैन से टेक ऑफ योर हैट एंड लेट मी सी योर फेस. अपना हैट हटाओ और मुझे अपना चेहरा देखने दो. टेक ऑफ मतलब रिमूव. नेक्स्ट इज टेक अप. टेक अप का मतलब होता है टू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग न्यू. किसी नई चीज में इंटरेस्ट लेना. I have decided to take up dance lessons to improve my dancing skills. मैंने अपने डांसिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए डांस के क्लासेस लेने के बारे में सोचा. Call in, ask for someone help. किसी की हेल्प, किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं तो what you से call in phrase यूज करते हैं हम. I am changing house. I have called in some of my friends to help me shifting my things. मैं घर बदल रही हूँ तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है. I have called in some of my friends to help me shifting my things. अपने चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए, एक घर से दूसरे घर पहुंचाने के लिए. Call out. Call out का मतलब होता है to say something loudly. किसी चीज़ को जोर से बोलना को call out कहते हैं. Usually a list or some items. Okay. Call out the names of the students who scored highest marks. हम लोग कह सकते हैं कि उन बच्चों के नाम जोर से बुलाओ जो जिनको हाईएस्ट नंबर आए हैं. Look for. Look for मतलब search for something. किसी चीज के लिए सर्च करना. Look for a carpenter. I need a new table for my study. एक कारपेंटर की खोज करो, को खोजो, मुझे नए टेबल की जरूरत है. नेक्स्ट इज लुक समथिंग अप. किसी चीज को खोजना. सीक इंफॉर्मेशन. कोई इंफॉर्मेशन खोजना या फिर कोई आंसर ढूंढना इन बुक और इन अ कंप्यूटर. ओके. लुक अप द मीनिंग ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी में कुछ डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स ढूंढो. नेक्स्ट इज सी आउट. सी समवन आउट. टू गो टू द डोर विथ समवन टू इन ऑर्डर टू से गुड बाय टू और टू देम. किसी को अपने घर के दरवाजे तक छोड़ना, उनको गुड बाय कहने के लिए. वो जा रहे हो तो उनको बाय कहने के लिए दरवाजे तक जाना. जैसे डॉक्टर इज लीविंग, कैन यू सी हिम आउट. डॉक्टर जा रहे हैं, क्या तुम उन्हें दरवाजे तक छोड़ सकते हो. ओके. नेक्स्ट इज सी ऑफ. टू गो टू रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सेट्रा टू से गुड बाय टू समवन. किसी को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे गुड बाय कहने के लिए जाना तो दैट इज सी ऑफ. आर यू गोइंग टू एयरपोर्ट टू सी हिम ऑफ. क्या तुम एयरपोर्ट जा रहे हो उसे सी ऑफ करने के लिए. Now few sentences are there. You have to use all these phrases and complete these sentences. This summer I want to dash cricket coaching. Do use करना है. Do किसके लिए use करते हैं हम? Take up. This summer I want to take up cricket coaching. इस summer मैं cricket coaching लेना चाहता हूँ. Take up. Okay. Next is please. Dash your shoes, they are wet.
रिमूव यूज करना है, प्लीज टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते खोल लो, TAK, टेक ऑफ, OFF, टेक ऑफ योर शूज, दे आर वेट, अपने जूते खोल लो, तुम्हारे जूते गीले हैं. आई डोंट नो हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, मुझे नहीं पता इस वर्ड को किस तरह बोलते हैं. शैल वी कंसल्ट डैश इट डैश इन द डिक्शनरी, शैल वी कंसल्ट के लिए किसी चीज को डिक्शनरी में देखने के लिए क्या कहते हैं, लुक अप. शैल वी लुक इट अप इन द डिक्शनरी. शी इज नॉट लॉस्ट बट वी नीड टू फाइंड हर, वो खोई नहीं है मगर हमें उसे ढूंढना है. शैल वी ऑल डैश हर लुक फॉर हर, हम लोग उसे खोजते हैं. लुक फॉर हर, ट्राई टू फाइंड समवन, लुक फॉर हर. द टैप लीक्स एंड वी आर वेस्टिंग वाटर, टैप बह रहा है, लीक कर रहा है और उससे पानी की बर्बादी हो रही है. लेट अस डैश द प्लम्बर, लेट अस लुक फॉर अ प्लम्बर. Call in the plumber. What we will write? Call in. Call the plumber in. Okay. You have a long list of names. तुम्हारे पास लंबा लिस्ट का नाम है. Could you dash them? Could you call them out? आप किसी को जोर से बुलाते हैं तो क्या करते हैं, कॉल देम आउट प्लीज. क्या तुम उन सबको बुला सकते हो जिसका नाम लिस्ट पे है. शी इज लीविंग टूडे, वो आज जा रही है. आर यू गोइंग टू रेलवे स्टेशन टू सी हर ऑफ, क्या तुम उसे रेलवे स्टेशन पे सी ऑफ करने जा रही हो. माया वॉन्ट्स टू लीव, माया जाना चाहती है. कुड यू से गुड बाय एट डोर, दरवाजे पे किसी को गुड बाय कहने को क्या कहते हैं, सी हर आउट. आई एम अ लिटिल बिजी इन द किचन, मैं किचन में थोड़ी व्यस्त हूं, क्या तुम उसे दरवाजे पे छोड़ाओगी. ओके. नेक्स्ट इज यूज द नाउन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज. ये सेंटेंसेज जो दिए हुए हैं आपको, इन सारे के एडजेक्टिव फॉर्म यूज करना है. ओके. और नाउन फॉर्म यूज करना है, एडजेक्टिव दे रखा है ब्रैकेट में, टू फिल द सेंटेंस. सुनैना ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल हर डैश व्हेन द नॉटी पप च्यूड अप हर होमवर्क. एंगर, एंग्री का एंगर, ANGER, एंगर. सुनैना ने अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल किया जब छोटे पपी ने उसके होमवर्क को चबा लिया. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स द डैश ऑफ द मैटर. सीरियसनेस, RIOUSNE, seriousness. I hope everyone stands the seriousness of the matter. सबको इस बात की गंभीरता पता, इस विषय की गंभीरता पता है. Ajay screamed so loud while riding on the giant wheel that it gave me a fright. FRIGHT, fright. अजय जाइंट व्हील पे इतने जोर से चिल्ला रहा था कि मैं डर गई. द डैश ऑफ प्लेस टुक आउट ब्रेथ अवे. द ब्यूटी, ब्यूटिफुल का क्या होता है नाउन, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी. वी ट्रेवल्ड इन ग्रेट डैश इन लार्ज एंड स्पेशियस वैन. कॉम्फर्ट, कंफर्टेबल का कॉम्फर्ट, कंफर्टेबल का नाउन कंफर्ट. वी ट्रेवल इन ग्रेट कंफर्ट एंड लार्ज एंड स्पेशियस वैन. हम बड़े आराम से बड़े से वैन में ट्रेवल किया हमने. फंक्शन एक्सप्रेसिंग इंटेंशन, किसी के इंटेंशन को एक्सप्रेस करने वाले कुछ फंक्शंस है. रीड दी सेंटेंसेस. आई एम गोइंग टू
बी हर फ्रेंड, मैं उसके दोस्त बनने जा रही हूँ. आई हैव डिसाइडेड टू बी हर फ्रेंड, मैंने उसका दोस्त बनने का डिसाइड किया. आई वॉन्ट टू बी हर ग्रैंड मदर, मैं उसकी ग्रैंड मदर बनना चाहती हूँ. आई एम कीन टू बी हर ग्रैंड मदर, मैं उसकी ग्रैंड मदर बनना चाहती हूँ. तो वॉट यू विल राइट, वॉन्ट टू. आई विल कॉल हर बेट्सी ट्रॉटवुड, मैंने उसे बेट्सी ट्रॉटवुड बुलाने का डिसाइड किया. वी मस्ट कॉल द डॉक्टर, हमें डॉक्टर को जरूर बुलाना चाहिए. ओके, यूज दीज हिंट्स टू एक्सप्रेस इंटेंशन. ये सारे जो दिए थे आपको ऊपर एग्जाम्पल, उनको हिंट्स समझो. एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए इंटेंशंस. नाउ यू हैव टू फिल सम ऑफ द सेंटेंसेस. सीमा, मदर आई फील रादर इल. मदर, सीमा अपनी माँ से कहती हैं कि मुझे हल्का बीमार सा महसूस हो रहा है. उस पर मदर उसकी क्या कहेंगी, लुक आफ्टर टिल यू फील बेटर. तो इस चीज़ को उसकी मॉम, ये वर्ड्स जो आपको दिए हुए इनको यूज़ कर कर, हिंट्स को यूज़ कर कर आपको फिल करना है सेंटेंस. आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर यू टिल यू फील बेटर. उसकी मदर क्या कहेंगी, आई एम going to look after you, going to look after you till you feel better. Okay, father, your school will be closing for the summer soon. उमित के फादर कहते हैं कि तुम्हारा स्कूल जल्दी ही समर वेकेशन के लिए बंद होने वाला है. उमित, join art class. I want to join art classes. उमित क्या कहेगा, I want to join art classes. I want to join art classes. मिसेस आनंद कहती हैं द ट्रेन लीव्स एट 7 AM टुमारो. कल 7 बजे सुबह ट्रेन निकलेगी. मिस्टर आनंद कहते हैं डोंट वरी, वेक अप अर्ली मॉर्निंग. ये कहना है. ओके, वी मस्ट वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग. वी मस्ट वेक अप early in the morning. Okay, next sentence. Next is Sarah, it's time for me to go home but it's dark and raining hard. सारा कहती हैं कि ये मेरा घर जाने का समय हो गया है मगर अंधेरा हो गया और बारिश बहुत जोरों से हो रही है. मिसेस स्नेहा इस पे क्या कहेंगी, डोंट वरी ड्राइव यू होम. डोंट वरी, आई विल ड्राइव यू होम बाय कार. कहेंगी डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल drive you home by in my car या in the car या in my car. CAR car. Okay. Next is pronunciation, punctuation. The comma shows a short pause and it separates a word or a group of words from the rest of the sentence. Comma क्या बताता है आपको कि थोड़ी देर आपको रुकना है. Shows a pause कि वहां पे जहां पे comma है वहां पे आपको छोटा शॉर्ट पॉज देना है, थोड़ी देर रुकना है. एंड इट सेपरेट्स अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और वो उस वर्ड को या पूरे उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पूरे सेंटेंस से अलग करता है. हियर आर सम यूजेस ऑफ कॉमा. अ कॉमा सेपरेट्स द वर्ड येस एंड नो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. येस और नो को भी सेंटेंस से अलग करता है. आप देख सकते हैं येस प्लीज कम इन, नो डोंट क्राई एनी मोर. A comma is used to separate words in a series. Word के series को भी अलग करने में काम आता है comma. It was a hot, wet day.
I bought apples, peaches, oranges, and pears. My mother and I sat by the fireside in the warm, bright living room. और हाँ, एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल, पीचेस, ऑरेंजेस एंड पियर्स हैं, तो एप्पल, पीचेस, ऑरेंजेस के पास कॉमा है, एप्पल के पास के बाद कॉमा है, पीचेस के बाद कॉमा है, मगर जहां पे एंड रहेगा, ऑरेंज एंड पियर्स, तो वहां कॉमा नहीं होगा. ओके, लास्ट वाली चीज के बाद कॉमा नहीं रहना है. जिसके पहले एंड है वहां कॉमा नहीं डलेगा, एंड के पहले कॉमा नहीं लगेगा. प्लीज प्लेस कॉमास इन द करेक्ट प्लेस इन दीज सेंटेंसेस. इन सारे सेंटेंसेस में आपको करेक्ट जगह पे कॉमा लगाना है. फर्स्ट इज यस, रियाज लाइक्स प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स वेरी मच. रियाज को कंप्यूटर गेम्स खेलना बहुत पसंद है. तो आफ्टर यस व्हाट यू विल पुट अ कॉमा. यस, रियाज लाइक्स प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स वेरी मच. दिस हॉट ह्यूमिड वेदर is very tiring. This hot, comma, humid weather is very tiring. Where you will put comma after hot. Okay? No, Lata doesn't come to our school. No, after no, what you will put? A comma. No, Lata does not come to our school. हमारे स्कूल में लता नहीं आती. Her room is full of books, comma, CDs and pictures. Okay? After book, what you will put? A comma. Anita, Rahul, Helen and Mazhar went to watch a movie. Anita, comma, Rahul, comma, Helen and Mazhar went to watch a movie. What's the name of that small colorful bird? Where you will put comma, what's the name of that small, comma, colorful bird? Okay? Next is writing. Imagine that you are Mrs. Betsy Trotwood. Write about the event that happened in short paragraph using these hints. सोचो कि तुम Mrs. Betsy हो और तुम्हें छोटा सा पैराग्राफ लिखना है इन सारे hints को यूज करके. Walking up drive, look through the window, a young woman what you will write? A young woman was sitting there. She looked very frightened. She jumped up from the chair and stood behind the chair. I told her to let me in. अभी इस स्टोरी का नैरेटर कौन है? डेविड कॉपरफील्ड नैरेटर थे. डेविड बता रहे थे कि मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ, मेरी आंटी ऐसा बोली. अभी क्या करना है आपको? नैरेटर किसको बनाना है? मिसेस बेट्सी ट्रॉटवुड को. मिसेस बेट्सी ट्रॉटवुड के नज़र से बताना है. मिसेस बेट्सी ट्रॉटवुड लिख रही हैं, मान लो उस दिन स्टोरी कि उस दिन क्या हुआ अपनी डायरी में. देन हाउ शी विल राइट. आई आस्क्ड हर टू टेक ऑफ हर कैप. She had a very thin and beautiful face. She looked very young. She started crying. I told her that I will be godmother to the baby girl and we will name her Betsy Trotwood Copperfield. We should name her Betsy Trotwood Copperfield. Then the doctor came. He went upstairs and I was waiting in the living room. I walked up and down the room. At last, the doctor came down and I found that it was a boy and I got very angry. I put on my bonnet and left and I never went back there. Okay? This way you have to complete the paragraph. So, this chapter is finished. We have already discussed the chapter. So, if you have any doubt, guys, you can write in the comment and you can ask me. And please don't forget to like, subscribe and share the video. And thank you for watching this video, guys.